اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ آیا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دعوا میں سا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دعوا میں سا، مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے آپ کا نام محترم؟ محمد رفیق شاہین، فرام نیوسم اسکول۔ آپ کی تعلیم؟ بی اے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ اس فیلڈ کو؟ مجھے تقریباً نیئر اباؤٹ 2003 سے میں ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوا اور الحمدللہ 20 سال ہو گئے ہیں اس علاقے کی خدمت کر رہا ہوں۔ کس طرح شوق ہوا اس فیلڈ میں؟ کوئی خاندانی وسیع تھی؟ نہیں، خاندانی تو نہیں تھا، خاندان تو مطلب ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوا اور میں نے یہ تہیہ کیا کہ جب ریٹائرمنٹ ہے کہ میں ایک خدمت کروں جو اللہ تعالیٰ مجھے صلاحیتیں دی ہیں، تو میں تاکہ اس عوام کے مطلب ہے کہ اس علاقے میں گلی محلے میں جو اسکول ہوتے ہیں وہ تو مطلب ان کے بارے سوچا جاتا ہے کہ یہ تعلیم اچھی نہیں دیتے، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے اس کو مطلب ہے کہ یہ سوچا کہ اب اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اسکول باہر بھی بنا سکتا ہوں میں، لیکن اگر یہ بچے مطلب اس محلے میں یا مطلب ہے کہ بچے گلیوں میں باہر کیسے جائیں گے، کنوینس نہیں ہے، باہر گاڑی مطلب روڈ پار کراس کرنے کے لیے پرابلم آتی ہے، تو یہ مطلب کہ اس لیے مجھے شوق ہوا کہ میں اس علاقے میں پہلے میں نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لیا، سٹارٹ کیا، اب انشاءاللہ یہ 10 مرلے میں یہ اپنا بلڈنگ پہ مقام کر رہا ہوں۔ محترم، بڑے مسائل پیش آئے ہوں گے آپ کو؟ جی بہت الحمدللہ مسائل آئے ہیں، لیکن ان کو میں نے سامنا کیا، کیونکہ میں ایک ڈیفینس پرسن ہونے کے ناطے میں نے سوچا کہ اگر مسائل تو آتے ہی رہتے ہیں لیکن کم از کم ان مسائل کو حل بھی ہم نے ہی کرنا ہے۔ یہاں پہ پرابلم یہ آتا ہے، فار ایگزامپل پیرنٹس ہیں، ان کی مائیں کوٹھیوں پہ کام کر رہی ہیں، یا جو بچے آتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اب وہ بچے ایسے آتے ہیں میرے پاس کہ جو جوان بچیاں ہوتی ہیں وہ کوٹھیوں پہ کام پہ لے کے جاتی ہیں، اور میرے پاس جب آتے ہیں تو میں کہتا ہوں باجی آپ اگر فیس نہیں افورڈ کر سکتے تو میں اس کو مطلب ہے کہ پڑھاؤں گا۔ وہ میں نے ایسے بچے بھی 500 میں پڑھائے ہیں، اور الحمدللہ ابھی میرا ریکارڈ فیس چیک کر سکتے ہیں، 500 سے لے کر 1000 تک میری فیس ہے اس علاقے میں۔ بچوں کے والدین کو شعور ہے، اویئرنیس ہے یہاں پہ؟ جی الحمدللہ اویئرنیس بھی ہے، اور جو کچھ اویئرنیس نہیں ہوتی تو ہم ان کو اویئرنیس دیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ مطلب جو ہے نا کم از کم اس بچوں کو پڑھائیں آپ۔ اندازاً کتنے فیصد ایسے والدین ہیں جو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ میرے جو پیرنٹس ہیں ان میں سے 70% ایسے ہیں جو بچے کی کارکردگی اور سارا کچھ چلاتے ہیں، اور عرصہ 20 سال سے میں یہ اسکول کو رن کر رہا ہوں، اور اس میں یہ مطلب کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو والدین ہیں ان کو مطلب ہے کہ اویئرنیس ہم نہیں دینی ہے، کسی نے باہر نہیں دینی۔ ماشاءاللہ سٹاف میرا 15 کے قریب ہے، اور الحمدللہ ماسٹر مطلب جو ہے نا کوئی انگلش ہے، کوئی اردو ہے، کوئی اسلامیات ہے، یہ مطلب سب اس حوالے سے ہم لوگ کر رہے ہیں ان کو تعلیم۔ محترم، کیا گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے
स्कूलों पे या नहीं? गवर्नमेंट भी दे रही है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं गवर्नमेंट के हवाले से, वो मतलब है कि बच्चों की स्ट्रेंथ मतलब अगर फॉर एग्जांपल 40-50 के करीब होती है तो वो ज़रा गवर्नमेंट्स में बच्चे, जब मैं इंटरव्यू करता हूँ बच्चों से, बेटा आप लोग गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाते, और गवर्नमेंट में मतलब वो कहते जी हम मतलब वहाँ पे गए हैं, या बच्चों का रश ज़्यादा होता है, क्लासेस ज़्यादा होती हैं, क्लास की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये वजह है। पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को अपने स्कूल की तरफ से। मैं अपने वालिदैन को यही पैगाम देना चाहता हूँ, यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे को तालीम के लिए भेजें स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट नहीं भेज सकते तो गवर्नमेंट में भेजें, लेकिन बच्चे को तालीम हासिल करनी चाहिए। और प्लस पॉइंट ये है कि जो बच्चे को, मेरा मैसेज ये है होता है स्कूल के अंदर भी और बाहर भी, कि जो बच्चा है ना उसको पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। कम से कम जो मोबाइल है ना, वो बच्चा अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है तो पेरेंट्स को एडवाइस है कि वो ना करें। अगर हम वालिदैन मोबाइल बच्चों के सामने खोल रहे हैं तो बच्चों को क्या हम तालीम देंगे? बच्चे भी वही काम करेंगे जो वालिदैन करेंगे। ऐसे लाइक जैसे एक टीचर है, वो एक स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है और वो कहती है कि झूठ नहीं बोलना, और वो बच्चा झूठ बोल रहा होता है, टीचर खुद झूठ बोल रही होती है। ये चीज़ें चंद एक हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल तो गली महल्ले में बहुत से हैं। अब कल मेरा रिज़ल्ट था, इसमें माशाल्लाह मैंने वार्ड 7 के काउंसलर हमारे मियाँ बाबर अशरफ साहब आए हुए थे, और उन्होंने भी अप्रिशिएट किया मुझे कि आप, बड़ी बात है कि आपने इतने अरसे के अंदर, मैंने अगर मेरा घर देखा जाए तो आपको शायद वो 3 फुट नीचे हो ज़मीन से, जो अभी तक मतलब है कि वो नहीं उसको बिल्डअप कर सका। तो ये बिल्डिंग 50,000 रुपये रेंट पे है, बच्चों की 500 से 1,000 फ़ीस मैनेज करना और टीचर को सैलरी देना, ये बहुत मुश्किल है। जैसे अब राय दानिश हमारे नज़दीक स्कूल है, तो उनकी टीचर्स हमारे पास आके तालीम हासिल कर रही, तालीम दे रही हैं बच्चों को। हम जितने भी टीचर्स हैं उनको मतलब यही बताते हैं कि आप लोग अपनी ये खिदमात को मतलब है कि ये बच्चों के लिए वक्फ करें। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम आसिया शाहिद है। आपकी तालीम? जी आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। स्कूल का नाम? यहाँ पर इस वक्त इस स्कूल में मैं टीचिंग कर रही थी, न्यू मुस्लिम पब्लिक हाई स्कूल। तो यहाँ पे क्या तौर आप, क्या ओहदा है आपका? मैं यहाँ पर एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। कितना अरसा हो गया आपको इस शोबे में? मुझे यहाँ पर इस शोबे में ऑलमोस्ट मोर देन 15 to 20 ईयर्स आई बिन टीचिंग। मैं आई बिन टीचिंग APS में, देन बीकन हाउस, और नाउ आई एम सर्विंग हेयर फॉर लास्ट 4 to 5 ईयर्स आई बिन हेयर। एक अच्छे उस्ताद के लिए, टीचर के लिए किस बात का होना ज़रूरी है? सर मेरे ख़्याल में एक उस्ताद को एक उस्ताद ही होना चाहिए। उसको अपनी मतलब कि अपने ओहदे का, उसको अपने वो जो अल्लाह ताला ने उसको एक मर्तबा दिया है, उसको इसका ख्याल होना चाहिए। जो आई एम सॉरी टू से कि आजकल जब हम टीचर्स में देखते हैं तो वो लैकिंग है, ठीक है। जो बच्चों के साथ एक बिला वजह की फ्रैंकनेस, और वो जो चीज़ होती है ना जिससे हम अपने, वो एक लिमिट, देयर मस्ट बी अ लिमिट, अ लाइन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। टीचर को पता है ना कि मैंने इससे आगे बच्चों से फ्रैंकनेस नहीं, और द स्टूडेंट दे मस्ट नो कि इससे आगे हमारा जो है ना वो टीचर के साथ जो रिलेशन है वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम इससे आगे जाएं। मैम किस तरह शौक़ हुआ आपको इस फील्ड में? सर मैं समझ ले कि आई एम अ बोर्न टीचर। मैं बाय प्रोफेशन, टीचिंग इज़ माई प्रोफेशन एंड माई पैशन एज वेल। मैं शुरू से मतलब ऑलमोस्ट आई वॉज इन, आफ्टर माई इंटर आई स्टार्टेड टीचिंग इन लोकल स्कूल्स। तो आपके सर कैसे हैं, आपके साथ कैसा रवैया रखते हैं? माशाल्लाह ही इज़ वेरी नाइस, बहुत केयरिंग है, कोऑपरेटिव है। टीचर्स को उनकी बुनियादी ज़रूरियात और उनको जो है ना समटाइम्स एक्स्ट्रा एज दे के उनके प्रॉब्लम्स को सुनना, जो कि मैनेजमेंट में किसी भी इंस्टीट्यूशन में मैंने बहुत रिनाउंड किस्म के जो डिस्टिंक्शन वाले मेरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस है, वहाँ पर दे डोंट लिसन टू द पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ द टीचर। जो यहाँ पर सुनी जाती हैं उनको एड्रेस किया जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है। पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को। मेरा बच्चों के वालिदैन से पैगाम है, स्पेशली यहाँ के स्कूल्स के, यहाँ के जो हम जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, कि प्लीज़ वी आर डीलिंग विद द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इसके लिए हमारे साथ हमें आपकी इनकरेजमेंट, आपकी सपोर्ट और आपकी तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए अगर आप, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फीस, दैन वी आर टेकिंग नथिंग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मतलब जैसा देखा जाए कि अगर हम कोई फ्रेंचाइज में कोई बाहर मेन पे जाके लें स्कूल, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उसी लेवल का मैं आपसे कहती हूँ कि
ऑनेस्टली एंड ओपनली स्पीकिंग कि हम उस लेवल की एजुकेशन हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो प्लीज़ पेरेंट्स को चाहिए कि वो हमारे साथ इसमें तावन करें, हमारी प्रॉब्लम्स को समझें। और ये एक जॉइंट वेंचर होता है, दैट इज़ बिटवीन अ पेरेंट एंड अ टीचर। पेरेंट के बगैर वी आर नथिंग, और हमारे बगैर उनके बच्चे की एजुकेशन नहीं हो सकती। तो इसके लिए ये है कि लेट्स जॉइंट आवर हैंड्स टुगेदर, ताकि इसमें हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के साथ जो चीज़ें हम उन्हें कह रहे होते हैं कि प्लीज़ इन चीज़ों को आप हमारे साथ ताउन करें। यहाँ पर थोड़ी सी मतलब अब तो पेरेंट्स माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस देना शुरू हो गए हैं। अदरवाइज़ जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कि 2-3 साल या 2-3 माह एक जगह पे स्कूल में बच्चे को एजुकेशन, जहाँ पर आपने ड्यूज़ क्लियर नहीं करवाए और बच्चे को उठाया और दूसरे स्कूल में ले गए, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा एजुकेशन सिस्टम में इस लेवल पे, कि इन चीज़ों को ज़रा प्लीज़ अवॉइड करें तो इंशाल्लाह। थैंक यू।